Now we in previous lecture we have done the divisibility test. We have seen that we can find out whether a number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 without actual division. So moving forward, we will do exercise 3.3. Okay, now your first question is, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2. Here one table is given to you. यहाँ पर एक टेबल आपको दी हुई है and you have to check which of the numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10 and by 11. So look at this table very carefully. The numbers are given here and second is divisible by 2, 3, 4, 5, 6. One example is given to you. Now the number is 128. So first you use the divisibility test of 2. So you know what is the test of 2? If the last digit of any number is an even number 0, 2, 4, 6, 8, then it is divisible by 2. So 128 is divisible by 2. So it is written yes. Now for the test of 3, what will you do? You will add these numbers 1 plus 2 plus 8. So 1 plus 2 plus 8 is 11 and 11 is not divisible by 3. So this number is, so here no is written. Similarly for 4, what you have to do? You have to see last two numbers. Last two numbers are 28. So 28 is divisible by 4. 4 7 ja 28. So this whole number 128 will be divisible by 4. So it is written yes. Now 5, what is the divisibility test of 5? If the last digit of any number is 0 and 5, then it is divisible by 5. But here the last digit is 8, so it is not divisible by 5. So it is written no here. Now for 6, what is the divisibility test of 6? If a number is divisible by both 2 and 3, then it will be divisible by 6. So if we see that this is divisible by 2 but it is not divisible by 3, so this number will be not divisible by 6. Clear? Now 8, what is the divisibility test of 8? You have to see the last 3 digits. So last 3 digits are 128. So you divide 128 by 8. Now 128 is completely divisible by 8, so this number will be divisible by 8. Similarly 9, sum of the digits is 11 and 11 is not divisible by 9, so this number is not divisible by 9. 10, what is the divisibility test of 10? If the last digit of any number is 0, then it is divisible by 10. Here the last digit is 8, so it will not be divisible by 10. Clear? And what is the divisibility test of 11? 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बच्चों? उसमें हम लोग ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर उनका डिफरेंस ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर जो है वो ऑड प्लेस पे, तो 1 + 8 इज़ 9 एंड 9 - 2 इज़ 7. तो 7 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, सो वी विल से दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11. तो इसी तरह से आपको इन सारे नंबर्स को चेक करना है और इनको एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है, आपको टेस्ट लगाने हैं. टेस्ट अप्लाई करके आपको बताना है कि ये नंबर इससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा. अगर होगा तो आप लिखेंगे येस, नहीं होगा तो लिखेंगे नो. क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट. अगेन यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करना है एंड दिस इज़ फॉर 4 and 8. 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसीलिए मैंने आपसे कहा था बेटा आप इनको लर्न करेंगे, आपको याद करना है इन टेस्ट को और उनको अप्लाई करना है. नाउ दे 572 है, इसको आपने 4 से चेक करना है. तो 4 से चेक करने के लिए आपके पास क्या टेस्ट है कि इसके लास्ट टू डिजिट्स क्या हैं इसके? 72. तो 72 को चेक करना है कि क्या 72 4 से डिवाइड हो जाता है? येस. सो अगर 72 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा 572 है, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि 1s 10s 100 लास्ट के जो 3 प्लेसेस होते हैं, जैसे यहाँ 352 है, तो 352 को आपने चेक करना है कि क्या वो 8 से डिवाइड हो जाएगा. अगर वो 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? तो इस तरह से आपको जो टेस्ट मैंने लिखवाए थे उन टेस्ट को लर्न करना है और उसको अप्लाई करना है आपने, बिना डिवाइड करे हुए एक्चुअल डिवीजन के आपको बताना है. अब जैसे ये 8 वाला मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप लिखेंगे 5500, आपको चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं. तो यहाँ पर आपको 500 को 8 से डिवाइड करके चेक करना ही पड़ेगा एक्चुअल डिवीजन में कि ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं. अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करना है 6 का. तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बेटा? अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा.
तो आप चेक करेंगे, जैसे पहला नंबर है, अगर इसको हम देखें इसका लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि जिस भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर होता है 0, 2, 4, 6, 8 वो 2 से डिवाइड हो जाता है। और 3 से चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, you will add these numbers, 2 plus 9 is 11, 11 plus 7 is 18, 18 plus 1 is 19, 19 plus 4 is 23, 23 plus 4 is 27, 23 plus, so 27 is multiple of 3, so this number is also divisible by 3. So we can say that this number is divisible by both 2 and 3, so it will be divisible by 6 also. So like this you have to check all these numbers by applying the divisibility test. Clear? Fourth question is same. Here you have to use the divisibility test of 11. तो 11 का divisibility test बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना, दोबारा से पढ़ना। यहाँ पर आपके पास है 5, 4, 4, 5, यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है। तो जो फर्स्ट डिजिट है इनकी जो प्लेसेस है 1, 2, 3, 4 ऑड और इवन, 5 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे, तो 1 क्या होता है ऑड नंबर, तो ये ऑड हो जाएगा। फिर 4, तो 5 + 4 इज़ 9, और इवन प्लेस पे कौन से हैं, सेकंड प्लेस पे कौन सा नंबर है 4, और फोर्थ प्लेस पे कौन सा है 5, तो 5 + 4 इज़ 9, तो 9 - 9 क्या होता है 0, और 0 जो है वो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें आपको देखना है ध्यान से कि सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, पहले उनका सम निकालेंगे और फिर उन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। अगर डिफरेंस 11 का मल्टीपल आता है, 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 11 से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सबसे छोटा नंबर लिखना है और सबसे बड़ा नंबर लिखना है, जिससे कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे है 6, 7, 2, 4, अगर आप इनका सम करेंगे तो 6 + 7 इज़ 13, 13 + 2 इज़ 15, 15 + 4 इज़ 19। तो हम यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखेंगे अगर हम 1 लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे तो 21 हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 2, जो हम यहाँ पिक करेंगे 2 लिखेंगे। क्लियर? डिजिट 2 डिजिट रखेंगे तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 8, अगर आप यहाँ 8 रखेंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा 19 + 8 इज़ 27, तो 27 इज़ डिविजिबल बाय 3। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक स्मॉलेस्ट नंबर पुट करेंगे और एक ग्रेटेस्ट नंबर पुट करेंगे, जिससे कि 3 से डिवाइड हो जाए। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप कौन सा नंबर पुट करेंगे कि जिससे ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही आपको इवन और ऑड वाला करना है। क्लियर? जैसे फर्स्ट ये ऑड नंबर है, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। क्लियर? इनकी पोजीशन आप इवन ऑड कैसे करेंगे, जैसे 1 होता है वो ऑड होता है, 2 जो होगा वो इवन होगा, थर्ड जो होगा ऑड होगा, फोर्थ इवन, फिफ्थ ऑड। इस तरीके से आप करके चेक करेंगे कि यहाँ पर हम कौन सा नंबर पुट करें कि ये जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा आप लोग इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।